Hello students, I welcome you back to the second part of the chapter Globe, Latitudes and Longitudes. In the previous video, we understood what is a globe, what are the imaginary lines, what is an equator, we understood what are latitudes. Now we will start with the explanation of longitudes. Now, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place, since there might be many places in one single latitude. Therefore, in order to locate them, we need a different set of vertical imaginary lines called meridians of longitudes. Now, remember your previous video where I explained you about latitudes. Those were the horizontal lines. So, if I want to go to a place A which is 30° north, then this place can be anywhere on that circle. Now, if I want to find out where on this circle is place A, then we need these vertical imaginary lines called longitude. Let us understand this with the help of a diagram. Now, you can see this is an equator, this is our north pole and this is our south pole. So, these vertical imaginary lines there which are running from north pole to south pole are called longitudes. Alright. Now suppose that this is one latitude, let me name it as L1. Alright. Now place A can be anywhere on this line L1. So how to locate that place A? Then comes longitude. So the point where the longitude intersects with L1, this point will be our place A. Alright. तो सर्कल के किस जगह पे प्लेस ए है पता लग सकता है लॉन्गिट्यूड से. सो दे आर सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सो जैसे लैटिट्यूड्स हमारे पूरे सर्कल थे, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो सेमी सर्कल हैं. दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ के हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम decreases steadily towards the pole where all the meridians meet. अब हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था जिसमें इक्वेटर हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं इनकी लेंथ कम होती रहती है और लास्ट में बस एक पॉइंट रह जाता है विच इज़ आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ये सेमी सर्कल्स होते हैं जो रन करते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अब डिस्टेंस जो होता है वो इनका डिक्रीज होता रहता है. जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जब हमने यहाँ से सपोजिटली दो लॉन्गिट्यूड्स शुरू करी तो यहाँ पे इनिशियली इनका डिस्टेंस कम था. इक्वेटर के पास आके इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया. फिर जब हम साउथ पोल की तरफ गए इनका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कम होता रहता है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो. और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ मिलता है? जब हम इक्वेटर के पास में हो. ऑलराइट. नाउ प्राइम मेरिडियन. The count of longitudes begin with the meridian which pass through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. जब हमने latitudes draw करे तब हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था विच वॉज अ 0° इक्वेटर. फिर हमने उसके सेंटर से एंगल बनाया और लैटिट्यूड ड्रॉ करे. सिमिलरली हमें लॉन्गिट्यूड में भी कोई 0 पॉइंट बनाना पड़ेगा जिससे हम लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो लॉन्गिट्यूड में 0 पॉइंट माना जाता है ग्रीनविच, जो एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में. उधर लोकेटेड है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी. उस जगह को 0° लॉन्गिट्यूड माना गया. तो ग्रीनविच से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि हमारा कहलाया जाता है प्राइम मेरिडियन, जिसके रेफरेंस से हम सारे लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं. तो जो GMT लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, वो पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड the left part is the western hemisphere. India is a part of eastern hemisphere while America is a part of western hemisphere. Alright, so GMT is a 0° longitude line. As I've already told, prime meridian divides the earth into 2 equal parts, eastern hemisphere and western hemisphere. So the longitude of a place is followed by the letter E for the west and W for the west. जैसे हमने लैटिट्यूड्स में किया था,
जब हम एक एंगल बनाते हैं, सपोजिटली ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये हम जब हमने यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बनाया था तो इस सर्कल पे कहीं पे भी वो जगह हो सकती है। अब 30 डिग्री नॉर्थ है कि 30 डिग्री साउथ है वो हमें मेंशन करना होता था, ऑलराइट, क्योंकि 30 डिग्री ये ऊपर भी बन सकता है और 30 डिग्री यहाँ नीचे भी बन सकता है। सो वी रियली नीड टू मेंशन वेदर इट इज 30 डिग्री नॉर्थ और वेदर इट इज 30 डिग्री साउथ। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स में भी हमको मेंशन करना पड़ता है वेदर इट इज 30 डिग्री ईस्ट और वेदर इट इज 30 डिग्री वेस्ट, ऑलराइट। नाउ grid of latitudes and longitudes. One can locate any point on the globe very easily by using its grid of latitudes and longitudes. अब हम इस ग्रिड का यूज करके बहुत easily कोई भी लोकेशन जान सकते हैं। So grid is basically both the combination of latitudes and लॉन्गिट्यूड्स। ग्रिड एक तरह का जाल है जिसमें दोनों लैटिट्यूड्स भी दिख रहे हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमें कोई लोकेशन को पॉइंट आउट करना है, दिस इज आर इक्वेटर, एज यू कैन सी दिस इज आर 0 डिग्री इक्वेटर, एंड वेयर इज आर प्राइम मेरिडियन, दिस इज आर प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच, ऑलराइट, सो दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ऑलराइट। नाउ सपोज आई वॉन्ट टू लोकेट अ प्लेस ए, ये हमारी प्लेस ए है, तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को मेंशन करते हैं और फिर हम लॉन्गिट्यूड्स को मेंशन करते हैं। अब देखते हैं प्लेस ए। प्लेस ए पे अगर मैं ये ऐसे लाइन देखूं, ये लाइन जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ये आ रही है 20 डिग्री पे, ऑलराइट, 20 डिग्री। तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ 20 डिग्री है कि साउथ 20 डिग्री है, दिस इज साउथ 20 डिग्री, ऑलराइट, 0 डिग्री के नीचे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दिस इज आर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब देखते हैं किस लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये ऊपर लॉन्गिट्यूड जा रहा है जा रहा है जा रहा है और ये कहीं ऊपर 100 डिग्रीज पे आ रहा है, ऑलराइट, बट ये 100 डिग्रीज ईस्ट पे है कि वेस्ट पे है, तो ये हमारा 0 डिग्री है, तो ये यहाँ इस साइड है, ये ईस्ट पर है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेस ए विल बी 20 डिग्री साउथ एंड 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ऑलराइट। सिमिलरली लेट्स प्लॉट प्लेस जी। अब दोबारा लैटिट्यूड को देखते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पॉइंट जी है, तो इक्वेटर से ऊपर आते हैं 20 डिग्री 40 डिग्री, ऑलराइट, तो यहाँ 40 डिग्री के लाइन में हमको जी मिल रहा है। सो दिस इज 40 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ है, दिस इज नॉर्थ, सो दिस इज 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इसका लॉन्गिट्यूड ढूंढते हैं, ये मेरा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो अगर मैं इधर अपने वेस्ट साइड जाऊंगी, इस तरफ जाऊंगी, तो मुझे 100 डिग्री पे, ये लाइन कुछ 100 डिग्री पे आ रही है, 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, से सी, जे, एच, बी, विच इज मेंशन्ड इन द डायग्राम. So with the help of a grid, we can find out the absolute location of any place. Now comes longitude and time. The sun is the best timekeeper throughout the world. The shadow cast by the sun is the shortest at noon and largest and longest at sunrise and sunset. कहने का मतलब है कि सन से टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं. जो परछाई बनती है सन की वजह से वो शॉर्टेस्ट होती है नून के टाइम पे या फिर दोपहर के टाइम पे, बट शैडो लॉन्गेस्ट होती है सनराइज और सनसेट के पॉइंट पे. ऑलराइट, नाउ व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, all the places along its meridian will have midday or noon. Time is thus same in all the places which fall on the same latitude. अगर GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, अगर GMT लाइन में दोपहर हो रही है, अगर प्राइम मेरिडियन लाइन पे दोपहर हो रही है, तो उस लॉन्गिट्यूड पे, उस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी जगह होंगी वहाँ पे दोपहर ही हो रही होगी. तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें टाइम सेम रहता है. देयरफॉर एक ही लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगह होती है उनका टाइम सेम ही रहेगा. सपोज एक लॉन्गिट्यूड में एक जगह पे अगर दोपहर के 3 बज रहे हैं तो उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे दोपहर के 3 ही बज रहे होंगे. ऑलराइट, नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. नाउ बिफोर आई बिगिन, let me just explain you this
figure. Now this is the Greenwich meridian line. Alright, this is our prime meridian which divides the earth into two parts. This is our eastern hemisphere and this is our western hemisphere. As I told, India is a part of eastern hemisphere and America is a part of western hemisphere. Similarly, we have an equator. Alright, now equator divides the earth into two parts, which is the northern hemisphere and southern hemisphere. So I hope you're clear with this. And 0 degree longitude is the prime meridian, 0 degree latitude is the equator. Alright, now as the earth rotates from west to east, the countries in the east get sunrise earlier than the western countries. Japan and Arunachal Pradesh are called the land of rising sun. अर्थ हमारा रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो हमारा ईस्टर्न पोर्शन पहले फेस करता है सन को. सो देयरफॉर ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले सूरज उगेगा एंड पहले वहाँ सुबह होगी, विच इज़ वाई जापान एंड अरुणाचल प्रदेश आर कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. तो जापान में सबसे पहले सनराइज होता है, इसलिए उसे लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है. सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है कॉज ये सबसे ईस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है. So those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. तो क्योंकि ईस्टर्न एरियाज में सबसे पहले सनराइज होता है, वहाँ पहले दिन शुरू हो जाता है, तो इस वजह से उन सारी जगह का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा. तो इमेजिन अगर ग्रीनविच में सुबह हो रही है तो उसके ईस्टर्न पोर्शन में सुबह हो चुकी होगी. हमारा इंडिया भी ईस्टर्न पार्ट में आता है, तो अगर ग्रीनविच में सुबह हो रही है तो इंडिया में पहले से ही सुबह हो चुकी होगी और दोपहर चल रही होगी. अगर कैलकुलेट करना हो कि अच्छा कितना टाइम आगे होता है, वो देखते हैं कि कैसे करेंगे. So let us begin with the statistics part. So अर्थ को एक रोटेशन जब वो करता है 360 डिग्री कितने टाइम में? 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री घूम जाता है. ठीक है, तो एक घंटे में अर्थ कितना घूमेगा? 15 डिग्रीज, विच इज 360 डिवाइडेड बाय 24. ऑलराइट, अब 1 डिग्री अर्थ कितना टाइम, 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा 4 मिनट्स. वाई 4 मिनट्स? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स. ऑलराइट, सो 60 डिवाइडेड बाय 15 इज 4. ऑलराइट, तो एक रोटेशन वो करेगा 4 मिनट्स में. तो सपोज अगर ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या टाइम चल रहा होगा? सो लेट्स कैलकुलेट दिस. सो इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 83 डिग्री ईस्ट में आता है. ठीक है, तो अब हम इसमें 15 डिग्री का सेट बना लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 15 डिग्री. तो मैंने क्या किया, इस 83 को मैं डिवाइड कर देती हूँ. तो मैंने क्या किया, इसको 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, इसके सेट्स बना रही हूँ, तो 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 डिग्री. ठीक है, 15 इंटू 5 इज 75 एंड 75 प्लस 8 इज 83. तो मैंने 83 को बेसिकली ब्रेक कर दिया. मैंने 15 में क्यों किया? क्योंकि हमने 15 डिग्री का ऑलरेडी टाइम निकाला हुआ है. तो 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 घंटा. तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 5. ऑलराइट, प्लस यहाँ लिखा है 8 डिग्री. इधर आ जाते हैं, 1 डिग्री को रोटेट करने में अर्थ को टाइम लगता है 4 मिनट्स. तो 8 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? 4 इंटू 8 विच इज 32 मिनट्स. ऑलराइट, तो 8 डिग्री की जगह मैं लिख देती हूँ 32 मिनट्स. तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 आवर इंटू 5 इज 5 आवर्स एंड प्लस 32 मिनट्स. ऑलराइट, तो इंडिया का टाइम ग्रीनविच से 5 घंटे 32 मिनट्स आगे होगा.
तो अगर वहाँ 2 बज रहे हैं तो 2 बज रहे हैं तो इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, 2 बजे में ऐड कर दिया 5.5 घंटे। तो अगर ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, 7:30। ओके, नाउ why do we have a standard time? Now there is a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. Now India is a vast country. तो अगर मैं इंडिया के 2 एक्सट्रीम्स को कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल गुजरात एंड असम, तो इन 2 स्टेट्स के बीच में अराउंड 1 hour 45 minutes का फ़र्क होता है। तो असम में सबसे पहले सूरज उगेगा और गुजरात में सुबह देर से होगी। तो अगर असम में सुबह के 8 बज रहे होंगे तो गुजरात में उस टाइम कितने बज रहे होंगे, करीब 6:30 बज रहे होंगे। तो इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है खुद एक इंडिया में ही। Thus, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. तो अगर ट्रेन का टाइम टेबल बनाया जाएगा और हर एक जगह का अपना अपना अलग टाइम होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो सपोज़ मेरी एक मीटिंग है एक स्टेट में एक सेट टाइम पे, मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ से निकलती हूँ, बट जब मैं वहाँ स्टेशन पे उतरती हूँ तो टाइम बिल्कुल अलग होता है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सो देयरफॉर हर जगह का टाइम एक सिस्टम से चलना चाहिए। तो इस वजह से इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसीलिए हमने एक टाइम सेट करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो और हम स्मूथली काम कर सकें। तो देश के बीच में से ये डिसाइड किया कि एक सेंट्रल मेरिडियन ढूंढेंगे और उसका टाइम माना जाएगा पूरे देश के लिए एज अ स्टैंडर्ड टाइम। ये वाली जो लाइन है, तो जो इस लाइन पे टाइम होगा वो ही पूरे देश में माना जाएगा। सो पूरे देश उस टाइम को फॉलो करेगा जो कि इस सेंट्रल मेरिडियन के पास होगा। ऑलराइट, थैंक यू।